بلاول بھٹو کا حکومت میں آ کر 17 وزارتیں ختم کرنے کا اعلان۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا وفاق کی 17 وزارتیں عوام پر بوجھ ہیں۔ اسلام آباد والے بابو کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں جن وزارتوں کو 18ویں ترمیم کے بعد ختم ہونا تھا، سالانہ 300 ارب خرچ ہوتا ہے، یہ وزارتیں ختم کر دیں گے، پیسہ عوام پر خرچ کریں گے۔ نواب شاہ کیڈٹ کالج میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سندھ جیسا انقلاب پورے ملک میں لائیں گے، اپنی بجلی پیدا کریں گے اور مفت دیں گے۔ صوبہ سندھ میں ایک انقلاب شروع کیا ہے، اس کو پورا ملک میں پھیلا دے۔ اسلام آباد والے بابو ہمارے کہتے ہیں کہ پیسہ ہی نہیں ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ وفاق میں 17 وزارتیں بند کریں گے، 300 ارب روپیہ سالانہ ان 17 منسٹریز میں خرچ کیے جاتے ہیں، وہی 300 ارب آپ پہ خرچ کریں گے۔ ہمارا شافیوں کو 1500 ارب سبسڈیز دیا جاتا ہے، یہی پیسہ ڈائریکٹلی کسان کارڈ کے تھرو، مزدور کارڈ کے تھرو عوام کو پہنچا سکتے ہیں۔ گرین انرجی پارکس بنائیں گے، الیکٹرک سب کو ان سے کچھ نہیں چاہیے، اپنا بجلی پیدا کریں گے، اپنے عوام کو پہنچائیں گے۔ بلے کے نشان کی پیشکش ہوئی، میں نے ٹھکرا دی، پرویز خٹک کا انکشاف۔ سربراہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک نے کہا لکھ کر دیا ہے، مجھے بلے کا نشان نہیں چاہیے، مجھے لوگ لوٹا کہتے ہیں، میں نے تو اپنی پارٹی بنائی ہے۔ بانی پی ٹی آئی پٹھانوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، 4 سال وفاقی حکومت رہی، صوبے کو 1 روپیہ نہیں دیا۔ ہوئی تھی بلے کہ میں نے انکار کر دیا، میں نے ریٹرن دیا ہوا ہے کہ مجھے نہیں چاہیے۔ پی ٹی آئی میں جو جاتا ہے وہ دیگ میں چلا جائے ٹھیک ٹھاک، کوئی چھوڑتا ہے تو لوٹا، میرے جیسے آدمی کو لوٹا کہتے ہیں۔ میں نے تو اپنی پارٹی بنائی، چیلنج کرتا ہوں کہ میں تو تمہارے مقابلے میں آیا۔ 4 سال وفاقی حکومت رہی، اس صوبے کو 1 روپے بھی نہیں دیا۔ پٹھان ہمارے، ان کو عمران خان بیوقوف سمجھتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ بس دماغ میں نے ڈال دیا اور انہوں نے بس جو میں کہوں گا وہ کروں گا۔ کسی کو بلے کے انتخابی نشان کی پیشکش نہیں کی گئی، الیکشن کمیشن نے پرویز خٹک کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان کا کہنا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے کسی کو بھی بلے کے انتخابی نشان کی پیشکش نہیں کی گئی۔ سربراہ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز پرویز خٹک کو بھی ایسی کوئی پیشکش نہیں کی گئی۔ پرویز خٹک نے آج پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ انہیں بلے کے نشان کی آفر ہوئی تھی، لیکن میں نے لکھ کر دیا ہے، مجھے بلے کا نشان نہیں چاہیے۔ کابینہ میں ہوتا تو بانی پی ٹی آئی کو گھڑی بیچنے سے روکتا۔ نعیم بخاری کا خصوصی انٹرویو۔ ممتاز ماہر قانون اور ٹی وی اینکر نے بتایا بانی پی ٹی آئی سے کہا تھا اسمبلیاں نہ توڑیے گا، بابر اوان اور فواد چودھری سے بچیے گا۔ نعیم بخاری نے دعویٰ کیا کچھ لوگ ملے اور کہا چاہتا ہے چیئرمین پی ٹی آئی باہر چلے جائیں۔ نواز شریف کو اگر وہم ہے کہ گوال منڈی سے پہلے کی طرح ووٹ پڑیں گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ صحیح تھا یا غلط تھا پاناما کا؟ 100% صحیح۔ کیا کبھی دوبارہ وہ کھل سکتا ہے؟ پاکستان ہر کچھ ہو سکتا۔ گھڑی دی تھی ایم بی ایس میں، انہوں نے کہا کہ یہ بیچ کے میں سڑکیں میں کہتا سر یہ نہ کریں، دس واچ بلانگس ٹو دا اسٹیٹ۔ یہ القادر ٹرسٹ میں جو ٹرسٹی چینج ہوئے ہیں، ڈونٹ ڈو دس۔ انہیں نہیں پتا بابر کی بیک گراؤنڈ، صادق اور امین صاحب تو وہ شکریہ ادا کرنے گھر پہ۔ میں کہا بچنا 2 بندے بابر وان سے اور فواد چودھری سے۔ لاسٹ میٹنگ میں مجھے کہتے ہیں خان صاحب اب کیا کرنا چاہیے؟ میں نے کہا آپ رائٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیفٹ پہ بیٹھے، اسمبلی نہ چھوڑیں، یہ آپ کی سیف پلیسز ہیں۔ نہیں مان یہ کہا گیا جی فلاں شخص آپ سے ملنا چاہتا ہے، جی آپ بڑے ویل کنیکٹڈ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ عمران خان ریلیز ہو کے ملک سے باہر آ جائیں۔ میں کہا پی ٹی آئی بیٹھ جائے گی۔ عمران خان ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی طرح دلوں میں اتر گئے، آپ کچھ کر لیں، وہ ووٹ اس کو ڈالیں گے۔ یہاں صاحب کو پتا نہیں کہ گوال منڈی میں ان کو اسی طرح ووٹ پڑیں گے جیسے پہلے، یہ نہیں ہوگا۔ استحکام پارٹی کو آپ کیا سمجھیں؟ نو چانس۔ سابق صدر آصف زرداری، خورشید شاہ، آغا سراج درانی، حمزہ شہباز، ایاز صادق سمیت متعدد امیدواروں کو الیکشن لڑنے کے لیے کلین چٹ مل گئی۔ قلم دوات کے نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں، 56 بھی جیتیں گے، 57 بھی جیتیں گے۔ انتخابات 2024 کے دوسرے مرحلے کا آغاز، کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری۔ سابق صدر آصف علی زرداری کے آبائی حلقے این اے 207 نواب شاہ سے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے۔ جعلی رہنما خورشید شاہ سکر سے الیکشن لڑیں گے، اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی کی قسمت کا فیصلہ گڑھی یاسین کے عوام سنائیں گے۔
खवातीन की मखसूस नशिस्तों पर शाजिया मरी को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। पिंडी बॉय शेख रशीद रावलपिंडी के हलके NA56 से अखाड़े में उतरेंगे। उनके भतीजे राशि शफीक के भी इसी हलके से कागजात मंजूर कर लिए गए। मेरे और राशिद शफीक के कागज मंजूर हो गए। NA118 से साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल कर ली गई। साबिक स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक लाहौर के NA121 से किस्मत आजमाएंगे। जियाल रहनुमा जहांगीर बदर के साहबजादे जुल्फिकार अली बदर PP 155 से इंतखाब लड़ेंगे। NA16 एबटाबाद से साबिक नून लीगी रहनुमा सरदार मेहताब आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ेंगे। उनका मुकाबला नून लीग के मुर्तजा जावेद अब्बासी से होगा। NA248 कराची से MKM के शेख सलाउद्दीन ने आजाद उम्मीदवार असलम खान के कागजात नामजदगी पर एतराज जमा करा दिए। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल में आसानी के लिए इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में ऑनलाइन सहूलत मरकज कायम कर दिया गया। उधर ओकाड़ा में DSP सिटी सर्कल मेहर यूसुफ की मुस्लिम लीग नून की सियासी तकरीब में शिरकत। DSP ने वर्दी में नवाज शरीफ की सालगिरह का केक काटा। सियासी तकरीरों के दौरान भी स्टेज पर मौजूद रहे। DSP सिटी की सियासी जमात के जलसे में शिरकत और केक काटने पर इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेते हुए कल तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है वर्दी पहनकर सियासी तकरीब में कैसे शिरकत की। तकरीब में शिरकत का फौरी जवाब दें वरना कार्रवाई होगी। वेलकम बैक। तो उधर इजरायली फौज क्रिसमस पर भी जारहियत से बाज न आई। गजा पर फजा और जमीन से शदीद गोलाबारी जारी। 24 घंटे में 250 फलस्तीनी शहीद कर दिए। पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करके दरारें डालने पर तुले हुए हैं। हमें एक पुरअज़्म और मजबूत कौम बनकर उभरने के लिए मुत्तहिद और यकजान होना पड़ेगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी में क्रिसमस की तकरीब में गुफ्तगू। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने पाकिस्तान में मुकीम तमाम मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। कहा, इस्लाम हमें अमन और दोस्ती का सबक सिखाता है। इस्लाम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की हौसला अफजाई करता है जो वक्त की अहम जरूरत है। आर्मी चीफ ने कायदे आजम के अजीम विजन और क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। मसीही बरादरी की खिदमात कुर्बानियों का एतराफ किया। चर्च इंतजामिया ने आर्मी चीफ का खैर मकदम किया और त्यौहार में शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा किया। जड़ावाला में सानिया 16 अगस्त के बाद क्रिसमस भरपूर तरीके से मनाई गई। RPO फैसलाबाद डॉक्टर मोहम्मद आबिद, सिटी पुलिस ऑफिसर और दीगर ने क्रिसमस के हवाले से मसीही बरादरी के साथ इजहार यकजहती किया। पूरी टीम ने मिसाक सेंटर के सामने क्रिसमस का केक भी काटा। पुलिस अफसरान और दीगर का कहना था, हम सबको आइंदा भी तमाम त्योहारों में एक दूसरे की खुशी में शामिल होना चाहिए। मुहज़्ज़ब कौमें खुशियों के त्यौहार मिलजुल कर मनाती हैं, जिसकी बदौलत कौमी रिश्ते और हुब्बुल वतनी के जज्बात मजबूत होते हैं। मिसाल सेंटर बनाए हैं पोस्ट जड़ावाला इंसिडेंट के बाद। इन्हें जहां मुसलमानों के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है वहां पे अपनी अक़लीतों का भी तहफ़्फ़ुज़ करना है। पुलिस ने जो एहतमाम आज तकरीब का किया है उसका बेसिक मकसद यही है कि यहाँ पे इंसानियत के पैगाम को और बैनुल मज़ाहिब के पैगाम को जो है वो प्रोपेगेट किया जाए। पाकिस्तान के तमाम मज़ाहिब एक सफ पे खड़े हैं और इनके अंदर कोई इंतशार नहीं। मेरा दिल कि जड़ावाला में शरपसंदों ने जितनी भी कोशिश की है, लेकिन हम सब जो हैं वो एक हैं और हमेशा एक ही रहेंगे। बानिए पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 147वां यौम विलादत आज मनाया जा रहा है। कराची में मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आला और गवर्नर सिंध और कोर कमांडर कराची समेत सियासी और अस्करी हुकाम ने मज़ार पर हाजिरी दी और मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की गई। थर में कानकुनी के खिलाफ शरपसंद नासिर का प्रोपेगंडा। निगरान सूबाई वजीर बराए मादनियात और ज़खायर मीर खुदा बख्श मरी हकीकत सामने ले आए। समाजी रहनुमाओं के हमरा इलाके का दौरा किया। कहा, शरपसंद इल्जाम लगा रहे हैं मंदिर और दरगाहें गिराई जा रही हैं। कोई मंदिर या दरगाह नहीं गिराए के कारुंजर पहाड़ को कहीं से काटा नहीं जा रहा। कुरान पाक पर हलफ उठाओ, वफादारी का यकीन दिलाओ। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई से लीगी उम्मीदवार मखदूम बासित सुल्तान बुखारी कुरान पाक पर हलफ लेकर वोट मांगने लगे हैं। साबिक चेयरमैन कश्मीर कमेटी बासित बुखारी NA 177, PP 272 और 273 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं। इस
कुरान शरीफ पे हाथ रख के हम इस्लाम पाक पे हाथ रख के अपने ईमान की कसम उठा के देते हैं हम अब्दुल्ला शाह बुखारी ग्रुप के साथ हैं। बासित बुखारी के हर फैसले के साथ हैं। हम एक दूसरे के साथ साबित कर। कराची में क्रिसमस की खुशियां, मसीही बरादरी बड़ी तादाद में पोर्ट ग्रैंड पहुंच गई, खानों से लुत्फ उठाया। मजीद बताएंगे जान नवाब। मौजूद कराची पोर्ट ग्रैंड पे मसीह बिरादरी खूब एंजॉय कर रहे हैं, मजेदार खाने खा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ। गोलगप्पे खाए, चाट वगैरह खाई, आइसक्रीम खाई और जिंगर खाया और मेरे बच्चों ने बहुत एंजॉय किया। मैरी क्रिसमस। फैमिली के साथ यहाँ मौजूद हैं, सो मेरी तरफ से, हमारी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस। अभी तक तो कुछ खाया भी नहीं, मेरा तो बाजू बहुत दर्द हो रहा है बच्चों को उठा। बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो रहा है पाकिस्तान में वर्ल्ड वाइड क्रिसमस। कहना है कि हमारा ईद से कम नहीं है, इसलिए हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं क्रिसमस की छुट्टी का और खूब हल्ला गुल्ला भी कर रहे हैं। जी, कराची और लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में शुमार हो रहे हैं। कराची में सर्दियों में आलूदगी क्यों बढ़ जाती है, ये जानते हैं रोह फातमा की इस रिपोर्ट में। दुनिया भर में माहौलियाती आलूदगी में तेजी से इजाफा हो रहा है। कराची और लाहौर का शुमार दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में होता है। विंटर सीजन में स्मोक काफी ज्यादा इन रहती है। इसकी बेसिक वजह कराची के लिए खास तौर पर सी ब्रीज का कट ऑफ हो जाना। जितने भी पॉल्यूटेंट्स हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं, चाहे वो व्हीकल्स के थ्रू इसका एमिशन हो रहा हो या इंडस्ट्रीज के थ्रू, तो हमारे वो जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं हमारे इन्वायरमेंट में सस्टेन कर जाते हैं। गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं, फैक्ट्री से निकलते हुए केमिकल, जगह जगह पड़े कचरे के ढेर और सीवरेज का गंदा पानी माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है। कराची शहर इंडस्ट्रियल हब है, तो यहाँ से बहुत ज्यादा जो है वो हैजर्डियस गैसेज और कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन हो रही होती है इंडस्ट्रीज से। फिजाई आलूदगी में एक वक्त में 8 से 10 सिगरेट के धुएं के बराबर मुजरे सेहत मादे पाए जाते हैं। फिजाई आलूदगी दुनिया भर का एक बुनियादी मसला बन गया है और इसका जल्द अज जल्द कोई हल ना निकाला गया तो ये इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी खतरा साबित हो सकती है। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ रूहा फातमा, ARY न्यूज, कराची। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हाजिर होंगे न्यूज हेडलाइंस के साथ।